Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and I am back in this video with the explanation of chapter number 4 from your NCERT books Honeydew. The chapter's name is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So before you read, let's see what has been prescribed for us to do. So do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई याददाश्त में भूल हो गई हो या आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो और आपको याद ना आए? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. Yes, it is very normal for us to forget something, but if you will forget a whole part of your life or whole incident of your life, it will drive you crazy. Means अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसी घटी हुई घटना को ही भूल जाएं तो ये आपको बिल्कुल बहुत ही परेशान कर देगा. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. So in this particular story, Bipin Babu has forgot about a complete trip to Ranchi. He has never been to Ranchi, he insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? So he claims that he has never been to Ranchi, but on the contrary there are many witnesses. कई ऐसे गवाह या सबूत हैं जो कहते हैं, उसको बताते हैं कि वो रांची गया है. So let's see what is this suspense in this story. So here we start the first paragraph, first part of this chapter. Every morning on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. एवरी मंडे हर मंडे को अपने काम से लौटते समय बिपिन चौधरी कहाँ जाता था? काली चरण के न्यू मार्केट में. क्या करने? बुक्स को बाई करने. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. एंड विच काइंड ऑफ बुक्स? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर बुक्स. ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. और वो एक बार में मंडे को ही जा करके 5 बुक्स ले लेता था सो दैट इट कैन लास्ट फॉर द वीक. मतलब पूरे हफ्ते भर उसे वो पढ़ सके. ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स and did not like spending time in idle chat. So he is saying in this lines the composer is saying that he was not a socialized person. Means वो समाज में मिलजुल कर उतना नहीं रहता था, उसे अकेले रहना पसंद था. He had only few of his friends and he did not spend his time in idle chat. Idle chat means wealth की बातें या gossiping, right? So unnecessary routine conversation, वो उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करता था. Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. And today, when he was buying books at Kalicharan market, he observed that someone is investigating him or observing him. कोई उसका पीछा कर रहा है या कोई उसे ध्यान से देख रहा है. From close quarters means बहुत ही नज़दीक से. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. And when he turned round, he found a man who was standing there. And after seeing him, he smiled. मतलब एक आदमी वहाँ पे खड़ा था जो उन्हें लगातार देख रहा था और उन्हें देखने के बाद वो हंस दिया. I don't suppose you recognize me. Now that man is saying कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचान रहे होंगे. Have we met before? Asked Bipin Babu. And on this particular speech, Bipin Babu asked, क्या हम पहले कभी मिले हैं? The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to Hudru Falls. So the man is replying कि उसे बहुत हैरानी हुई. He was greatly surprised. And he claimed that he met him for a whole week continuously. तकरीबन एक हफ्ते लगातार वो उससे मिला है और उसने उसके लिए, किसके लिए? बिपिन बाबू के लिए हुड्रो फॉल्स जाने के लिए कार का भी अरेंजमेंट किया था, राइट? इन 1958 इन रांची. और ये सब चीज़ें कहाँ पर कब हुई थी? इन 1958 इन रांची. एंड ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ बाई with the name Parimal Ghosh. By listening the word Ranchi, Bipin Babu got very surprised. Now what he is asking? Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making mistake.
Because Bipin Babu was pretty convinced that he had never been to Ranchi, so he thought that this man is making a mistake. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times. वो कभी रांची गए नहीं हैं, लेकिन हाँ जाते जाते रह गए थे. प्लान्स बने लेकिन वो गए कभी नहीं. But never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" So Bipin Babu smiled and asked, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? And then the man raised his eyebrows. अपनी भौहों को उठाया, bit his tongue, जीभ को दबाया, and said, "Do I know you? Who doesn't know Bipin Chaudhary?" तो वो आदमी कह रहा है, द मैन इज सेइंग कि डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? कौन आपको नहीं जानता है? Bipin Babu now turned towards the bookshelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." So in this paragraph, Bipin Babu is not paying attention to the man's words. He is constantly finding his books on the bookshelves, and he said कि अभी भी तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, और अक्सर इंसानों से हो भी जाती है, क्योंकि मैं कभी रांची नहीं गया हूँ. ऑन दिस नोट द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड. अब वो इंसान बहुत तेज़ी से हंसने लगा. वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी. नाउ ही इज़ रेमिनिसाइटिंग हिम. उसको रिमाइंड करा रहा है कि क्या वहाँ पे हुआ था. कह रहा है, यू हैड अ फॉल इन हुड्रो, आप हुड्रो में, फॉल मीन्स गिरे थे या कूदे थे. एंड कट योर राइट नी, और राइट नी दाएं घुटने में आपको कट भी लग गया था. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netherhut the next day. कह रहा है, मैंने आपके कट लगने के बाद आपके लिए आयोडीन लाया था, आपके लिए कार की अरेंजमेंट की थी नेटरहट जाने के लिए अगले दिन. बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी. बट आप जा नहीं पाए थे क्योंकि आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था. कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? Someone else you know was also in Ranchi at that time, and one friend of yours was also at Ranchi with you at that time, and that was Mr. Dinesh Mukherjee. The man is reminding him all these things. You stayed in a bungalow. You said you did not like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची. आपने कहा, आपने उस टाइम क्या कहा था कि आपको होटल का फूड नहीं पसंद है, एंड यू विल प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची. मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर. और मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपनी बहन के साथ रुके हुए थे. यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट मून लैंडिंग, रिमेंबर. और आपकी उनसे मून लैंडिंग के टॉपिक को लेकर के एक बड़ी बहस भी हुई थी. क्या ये सब कुछ भी नहीं याद है? आई विल टेल यू मोर, मैं तुम्हें और बताता हूँ. यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स. और आप जब यहाँ पे थे, आप हमेशा अपने साथ एक बैग रखते थे बुक से भरी हुई. ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जब भी आप जहाँ भी किसी दृश्य को देखने के लिए जाते थे, आप एक बैग के साथ जाते थे जिसमें किताबें भरी होती थी. एम आई राइट और नॉट? अब बताइए, क्या मैं सही हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स. विच मंथ in 58 are you talking about? The man said, October. Still Bipin Babu is not paying attention to his words. And after finally he asked कि in 1958 of which month you are talking about? So he said कि किस महीने की ये बात कर रहे हो? And the man replied, it is, these incidents are all about of October. Okay? No sir, said Bipin Babu. I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Now Bipin Babu is saying कि नहीं, मैं 58 में कानपुर में था अपने एक फ्रेंड के साथ एक पूजा सेरेमनी में. You are making a mistake. Good day. Now he bade him good day and left there. But the man didn't go. लेकिन वो आदमी वहीं खड़ा था. Nor did he stop talking. और ना ही उसने बात करने से वो रुका. Very strange. वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगला. कह रहा है, बहुत अजीब बात है, एक शाम तो मैंने आपके साथ आपके बंगला में चाय भी पी थी. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली एंड यू हैड टोल्ड मी अबाउट योर फैमिली. यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago. आपने कहा था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं, एंड यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची. और आपने यहाँ तक बताया था कि आपका भाई पागल होने के नाते मर गया था
and that is the reason you did not want to visit the mental hospital of Ranchi. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. Utter disbelief means very shockingly or very surprised, right? So जब बिपिन बाबू ने किताब ले लिया जब बिपिन बाबू ने किताब ले लिया और वो स्टॉल से वहाँ से चले गए, बट द मैन वॉज स्टिल देयर एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी कि उनको बिपिन बाबू को इस बारे में कुछ भी नहीं याद है. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर chapter number 4. Now moving ahead, we will be discussing the remaining part of the lessons. Okay, let's continue with the second part of this lesson. Bipin Babu's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you, Sitaram? Means when he left that shop, he went into his car and asked his driver to drive to the Ganga, and his driver's name is Sita Ram. Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder, and when he was on his way to the Ganga, he felt regression. उसको पछतावा हुआ. क्योंकि उसने उस बहरूपिये या जो वो वहाँ पे शॉप पे मिला था उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके अपने आप को टेंशन में ले आए हैं. ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट. नाउ ही इज़ अश्योरिंग हिमसेल्फ कि जब वो कभी रांची गए ही नहीं हैं, सो इसमें कोई प्रश्न का सवाल, इसमें कोई डाउट का सवाल ही नहीं उठता है, राइट. इट वॉज इनकंसीवेबल दैट he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. और ये बिल्कुल समझ के परे चीज़ थी. इनकंसीवेबल मीन्स विच कैन नॉट बी कन्विंस्ड, जिसको आप मना ना सके, जो समझ के बाहर हो. और ऐसी चीज़ जो अभी सिर्फ 6-7 साल पहले घटी हो, उसको भूल जाना ये बिल्कुल नामुमकिन सा था. ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी याददाश्त भी काफ़ी अच्छी थी. अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, तब तक उनकी याददाश्त अच्छी थी जब तक उस आदमी ने आ करके उनके दिमाग को पूरी तरह से फिरा नहीं दिया, उनके सर को पूरी तरह से घुमा नहीं दिया उस रांची के इंसिडेंट के बारे में बात करके. वॉज ही लूजिंग हिज माइंड? बट हाउ कुड दैट बी? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. अब वो अपने आप से पूछ रहे हैं क्या उनका दिमाग फिर रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो रोज़ अपने ऑफिस में काम करते थे, जो कि जहाँ एक बहुत बड़े फर्म में काम करते थे और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक अपने जॉब को परफॉर्म करते थे. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उनको अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं याद है जो बहुत ही सीरियसली गलत हो गया हो, राइट. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट, और आज ही उन्होंने ऑफिस में सिर्फ आधे घंटे तक किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बोला है, और फिर भी ऐसी चीज़ें हो गई जो उन्हें समझ में नहीं आ रही है. एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और तब भी इनके बारे में उस आदमी को बहुत कुछ पता था. हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ही एवर सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. इंटीमेट मीन्स वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट. बहुत प्राइवेट और पर्सनल डिटेल्स भी उस आदमी को उसके बिपिन बाबू के बारे में पता थी. और वो डिटेल्स क्या थी? द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी. तो ये सारी चीज़ें उसको पता थी. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, और उसको इन सारी चीज़ों की तो सही जानकारी थी, लेकिन जो उसने गलती की वो ये थी कि वो जो कह रहा था कि बिपिन बाबू रांची में कभी गए हैं. नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई. नाउ ही इज़ अश्योरिंग हिमसेल्फ कि वो गलती नहीं, वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है. डेलिबरेट मीन्स जानबूझकर. अ डेलिबरेट लाई ही वॉज टेलिंग, राइट. In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची's place. और वो ये बात याद कर रहे हैं कि 58 में वो अपने फ्रेंड के घर, कानपुर वाले फ्रेंड के घर हरिदास बागची's के प्लेस पर थे. All बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू. अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए बिपिन बाबू को क्या करना था? दैट ही शुड आस्क हरिदास. बट नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. बिपिन बाबू suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan
some weeks ago and he did not have his address. Now when he was thinking about asking to Haridas, so he suddenly came to know, or his mind suddenly blessed, that Mr. Haridas with his family has been moved to Japan few weeks ago, और उनके पास जापान का एड्रेस नहीं है कि वो उनसे कोई कन्वर्सेशन या कोई भी सॉरी कम्युनिकेशन बना सकें, राइट. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ. नाउ अगेन ही इज सेइंग कि आखिर साबित करने की ज़रूरत ही क्या है. ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची. उन्हें खुद इतनी पूरी तरह से अश्योर हैं वो कि कभी भी वो रांची नहीं गए हैं. एंड दैट वॉज दैट, और बस यही बात ही है. द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिसकम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड. अब वो गंगा के किनारे पहुंच गए हैं. रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, स्टिमुलेटिंग, ब्रेसिंग का मीन्स, एंड येट अ स्लाइट डिसकम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड. अभी भी उनके मन में कुछ ना कुछ डिसकम्फर्ट मीन्स कंफर्टेबल मीन्स किसी के प्रति कंफर्ट रहना, डिसकम्फर्ट मीन्स अ सेंस ऑफ नॉट कंफर्टनेस, राइट. तो अभी भी उनके माइंड में ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं. अराउंड हस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी. और हेस्टिंग्स मीन्स जल्दबाजी में वो उठे, एंड ही डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स. उन्होंने अपने ट्राउज़र को रोल अप करके राइट नी के में लगे हुए कट के बारे में देखना चाहा जो कि उस मैन ने मेंशन किया था. एंड व्हाट ही फाउंड, देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल when the injury had occurred, and when he rolled up his trouser he found that there is a long cut. और उनको ये बिल्कुल नहीं याद आ रहा था कि आखिर ये चोट उन्हें कब लगी थी, राइट. इफ यू सी हियर, impossible to tell when the injury had occurred. Now moving ahead. Had he never had a fall as a boy and cut his knee, now he is remembering for in his childhood कि क्या कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो बच्चे रहे हों और वो गिरे हों फॉल में और उनके घुटने पर कट लगा हो. He tried to recall such an incident but couldn't. वो याद करने की कोशिश तो बहुत की लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं आया. Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee, and then he suddenly thought of Dinesh Mukherjee because that name was being mentioned by the man that he was with one of his friend. Okay, the man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. वही चीज़ जो मैंने भी कहा. The best thing surely would be to ask him. Now he is saying कि अच्छा ही होगा कि मैं उससे पूछ लूँ. He lived quite near, और वो बगल में रहते भी हैं. In बेनी नंदन स्ट्रीट, बेनी नंदन मार्ग के बगल उनका घर भी है. What about going right now? Now he is thinking about to go right now and ask. But then, if I had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं जा करके अभी पूछूंगा भी, और जब वो कभी रांची गए ही नहीं हैं तो इसके बारे में दिनेश मुखर्जी क्या सोचेंगे कि ये कंफर्म करने आए हैं, क्या इनकी याददाश्त चली गई है. सो ही वॉज इन डाउट. ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स. मीन्स अगर वो कन्फर्मेशन लेने जाएंगे तो मुखर्जी विल कंक्लूड, या वो ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बिपिन बाबू क्या हो गए हैं, गॉन मैड, वो पूरी तरह से पागल हो गए हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट रिमेंबरिंग द ट्रिप ऑफ हिज लाइफ. नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम. एंड नाउ ही केम टू अ कंक्लूजन दैट नहीं, वो किसी से पूछेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत ही बुरा चीज़ हो जाएगा. एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सरकाज्म कुड बी. और उनको ये भी पता था कि कितने बुरी तरह से दिनेश का सरकाज्म मीन्स ताना मारना, ठीक है. सो इफ ही वुड हैव आस्क्ड अबाउट द रांची ट्रिप एंड दिनेश वुड हैव रिस्पॉन्डेड इन अ sarcastic manner, so that cannot be bearable. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. अब अपने आप को उन्होंने थोड़ा कंफर्ट जोन में ले आए हैं. एंड ही इज सिपिंग कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम. अब वो फिर से थोड़ा सा ईज फील कर रहे हैं, आरामदायक फील कर रहे हैं, और इन सारी बातों को बकवास ठहरा दे रहे हैं. सच अ न्यूजेंस. एंड ही इज सेइंग कि जब लोगों के पास कुछ काम करने के लिए ना रहे तो वो सिर्फ आकर के लोगों को परेशान करते हैं. गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर मीन्स इंटरफेयरिंग विद एंड अनोइंग पीपल, किसी के काम में दखल देना और उन्हें गुस्सा दिलाना. आफ्टर डिनर
Snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in Newmarket. Now, when he was about to sleep and his mind was filled with another thriller of his life, he completely forgot about the man who had met him in the market. Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू उन्होंने नोटिस किया दैट विद एवरी पासिंग आवर, हर घंटे जो बीत रहे थे, द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड. सो एट नाइट ही वॉज फीलिंग वेल, बट अगेन इन द नेक्स्ट डे जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे, समय बीत रहे थे, ही वॉज कम्प्लीटली गेटिंग इंगेज्ड इन द प्रीवियस डेज इनकाउंटर विद द मैन एंड हिज वर्ड्स. तो जो कुछ भी प्रीवियस डे में हुआ था वो फिर से उसमें काफ़ी परेशान से या डिस्टर्बिंग होने लगे. इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. अब नाउ ही इज आस्किंग कि अगर उस आदमी को इतना कुछ पता है बिपिन बाबू के बारे में, तो फिर वो मेरे रांची ट्रिप के बारे में गलत कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कभी वहाँ गया ही नहीं. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. और फाइनली लंच से पहले उन्होंने डिसाइड किया कि ही इज़ गोइंग टू कॉल दिनेश मुखर्जी. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. और उन्होंने सोचा कि जो भी सवाल है उसका जवाब फ़ोन पे ही पा लिया जाए, ताकि एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, ताकि फेस टू फेस जो रिएक्शन होता वो फ़ोन पे नहीं दिखेगा. सो ही डिसाइडेड टू कॉल हिम एंड फिक्स द प्रॉब्लम. 235616, Bipin Babu dialed the number. So this is the number he dialed on the dial pad. Hello, is that Dinesh? This is Bipin here. He said, क्या उधर से दिनेश बोल रहे हैं? मैं इधर बिपिन हूँ. Well, what's the news? Now Dinesh is saying, हाँ भाई मैं दिनेश ही हूँ, क्या खबर है? Bipin is saying, I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. He said कि मैं सिर्फ इसलिए कॉल किया हूँ कि एक घटना जो 58 में घटी थी, मीन्स 1958 में, मैं उसको याद करने के लिए तुम्हें फ़ोन किया है. 58 वॉट इंसिडेंट? सो मुखर्जी इज़ आस्किंग कि कौन सी घटना की बात कर रहे हो. वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. नाउ बिपिन इज़ प्लेइंग अ ट्रिक हेयर. ही इज़ सेइंग कि मुझे जहाँ तक याद है कि 58 में तुम कलकत्ता में थे. वेट जस्ट अ मिनट. 58, just let me check in my diary. Now the Mukherjee is saying कि एक मिनट रुको और मुझे मेरी डायरी में चेक करने दो. For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. अब कुछ देर तक बिल्कुल सन्नाटा सा था, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी. For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. So कुछ देर तक सन्नाटा पसरा था. And his heartbeat had gone up. और उनको पसीने निकल रहे थे. Hello. Yes, I have got it. I had been out twice. So मुखर्जी is replying कि हाँ मुझे पता चल गया कि उस साल मैं 2 बार बाहर गया था. Once in February nearby to कृष्णा नगर to a nephew's wedding. एक बार फरवरी में कृष्णा नगर अपने भतीजे की शादी में. And then बट यू वुड नो अबाउट दिस वन. एंड सेकेंड वन ही इज टॉकिंग कि तुम्हें तो दूसरे वाले के बारे में पता होना चाहिए. द ट्रिप वॉज टू रांची एंड यू वर देयर टू. मुखर्जी इज ऑल्सो कन्फर्मिंग कि तुम भी तो थे मेरे साथ रांची में. दैट्स ऑल. बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? स्लूथिंग मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग. इस इवेंट के बारे में तुम इतना इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो? वी बोथ वर टू रांची इन दैट ईयर. नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू. Anyway, thanks. So Bipin Babu cut the phone, and now Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. बिपिन बाबू ने रिसीवर मीन्स जो फ़ोन का रिसीवर होता है जो हम कान पे लगाते हैं, टेलीफोनिक रिसीवर, उसको जल्दी से जोर से पटका और अपने हाथों को सर पे रख करके काफ़ी परेशान हो गए. ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. Appetite means bhook. So after talking to Mukherjee, the response he got had made him very depressed and very surprised that he refrained
ईटिंग हिज लंच, उनके जो भी वो लंच में सैंडविचेस लाए थे उन सबको खाने का मन नहीं किया उन्हें, क्योंकि उनकी भूख मर गई उन सारी बातों को सुनने के बाद जो मिस्टर मुखर्जी ने उन्हें बताया. सो दिस वॉज द सेकेंड paragraph we had done with. Now let's continue with the third and last paragraph of this chapter. After lunchtime, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. लंच टाइम के बाद उन्हें लगा कि वो ऐसे इस डिलेमा के साथ, इस कन्फ्यूज़न के साथ तो डेस्क वर्क नहीं कर सकते कि बैठ करके वो काम करते रहें. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म. 25 साल से वो जिस फर्म के साथ काम कर रहे हैं ऐसा कभी उनके साथ नहीं हुआ था. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसाइचुअस वर्कर. उनके साथ एक जो टैग जुड़ा है, जो एडजेक्टिव जुड़ा है कि वो बिना थके हुए और बहुत ही एक्यूरेट काम करते थे. एक्यूरेट इन द सेंस विदाउट एनी मिस्टेक, राइट. सो इफ़ यू सी हियर, कंसाइचुअस मीन्स केयरफुल एंड करेक्ट. बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ विल. लेकिन आज उनका सर पूरी तरह से चक्कर खा रहा था. विल इज फाउंड इन वॉशिंग मशीन्स. इफ यू फाउंड द विल यूज टू मिक्स द क्लॉथ्स. तो वो जो कपड़ों को घुमाता है, दैट पर्टिकुलर, जिसको चक्र जो इस तरह से होता है, दैट इज कॉल्ड विल. तो यहाँ पे विल का मतलब है कि हिज हेड वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट. ओके. बैक होम एट 2:30 Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. और जब वो 2:30 पर घर लौटे, वो बेड पर लेट गए और अपनी सारी याददाश्तों को इकट्ठा करने की फिर से कोशिश करने लगे. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. So he is admitting कि किसी भी नॉर्मल इंसान को कोई चीज़ भूल जाना, अगर सर पे उसके चोट लगे तो ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा था कि सिर्फ एक इंसिडेंट उस इंसान को ना याद हो और बाकी सब कुछ याद हो. सो दैट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर हिम, राइट. और वो भी जो अभी जल्द में घटा हो. समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट and a fairly recent and significant one at that, right. He had always wanted to go to Ranchi. उनको रांची जाने का हमेशा मन तो रहता था. To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. So he was interested in going to Ranchi but had never been to. और अगर वहाँ पर वो गए होते तो उनको सब कुछ वो याद रहता. And that was utterly impossible means very confused, right. Very confused. He was very confused about this particular things which had just happened. At 7:30 Bipin Babu's servant came and announced, Chuni Babu sir says it's very important. बिपिन बाबू का सर्वेंट आया और उसने कहा कि नीचे चूनी बाबू सर आए हैं और वो कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपसे मिलना. बिपिन बाबू न्यू वॉट चूनी हैड कम फॉर. बिपिन को ये पता था कि चूनी किस लिए आए हैं. चूनी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. एंड हु इज चूनी लाल? ही वॉज हिज चाइल्डहुड फ्रेंड. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम. और वो इस वक्त कठिन समय से गुजर रहे हैं लेटली. एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब. और वो बिपिन बाबू से जॉब मांगने के लिए या जॉब की सिफारिश करने के लिए आए हैं. बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो. और उनको ये पता था बिपिन बाबू को इस समय वो उसकी मदद करने के काबिल या लायक नहीं है या उस स्थिति में नहीं थे. बट चूनी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी. लेकिन चूनी लगातार उनसे किसी भी चीज़ उनसे इसी बात पर फोर्स करता रहता था. व्हाट डू यू मीन बाय बैड पेनी? पेनी मीन्स होता है बेटा मनी. सो मीनिंग अगर हम इसकी निकालें बैड पेनी की, तो जो जैसे हम करेंसी नोट्स लेकर जाते हैं जो गला हो या नहीं सही हो, तो उसको जब हम चलाने की कोशिश करते हैं शॉपकीपर रिटर्न्स इट, बट वी ट्राई टू मेक इट कन्वर्टेबल और एक्सचेंजेबल फ्रॉम गुड्स. हम कोशिश करते हैं कि उसके बदले में हमें सामान मिल जाए. बैड पेनी. बट हियर इट मीन्स बैड पेनी मीन्स कि अपीयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम. ऐसी जगह पर बार बार आना जहाँ पर वो नहीं चाहते कि आए. मीन्स बिना बुलाए मेहमान काइंड ऑफ थिंग, राइट. बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली
was it not possible for him to see Chuni now but not in several weeks? तो बिपिन बाबू ने ये कहलाया अपने नौकर से कि उनसे कह दो कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ हफ्तों तक वो उनसे मिल नहीं पाएंगे. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chuni might remember something about the 58 trip. और जैसे ही उनका नौकर नीचे जा रहा था चुनी लाल को वो सब बताने के लिए, बिपिन बाबू माइंड गॉट स्ट्रक्ड कि शायद चुनी को कुछ पता हो 58 के ट्रिप के बारे में. देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उनको लगा कि इससे पूछने में कोई भी गलत या कोई भी नुकसान नहीं है. बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम. Chuni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. So Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. जल्दी से वो लिविंग रूम से उतर करके नीचे की तरफ भागे. चुनी वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन जब उसने बिपिन को देखा, he turned round hopefully, वो बहुत ही आशापूर्वक वो मुड़ा. बिपिन बाबू didn't beat about the bush. Didn't beat about the bush means इधर उधर की बात ना करना. Coming to the point, he exactly came and asked the very important thing कि listen Chuni, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. वो कह रहे हैं कि तुम मुझे बहुत दिन से जान रहे हो, मुझे देखते आए हो और तुम्हारी मेमोरी भी बहुत अच्छी है. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? कि अपनी मेमोरी को, याददाश्त को पीछे ले जाओ और मुझे बताओ क्या 58 में मैं रांची गया था. चुनी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? नाउ चुनी सेड कि वो 58 मीन्स 58 ईयर था या 59, दैट मीन्स 1958 था या 1959. ही मेड अनदर क्वेश्चन, ही मेड अनदर डाउट इन दैट. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? अब उसके क्वेश्चन पे बिपिन बाबू इज आस्किंग, क्या तुम्हें इतना श्योर है कि क्या मैं रांची गया था कभी उन सालों में? चुनीज लुक ऑफ अमेजमेंट मीन्स सरप्राइज, वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी. तो उसका जो चेहरे पे सरप्राइजमेंट आया वो किसी चिंता से भरा हुआ नहीं था. डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? सो ही इज सेइंग, क्या तुम्हें कोई संदेह है इस बात का कि तुम कभी रांची गए थे? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? नाउ अगेन बिपिन बाबू इज आस्किंग कि क्या मैं गया था, क्या तुम्हें ये चीज़ पूरी तरह से याद है? चुनी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? चुनी सोफे पे बैठ गया और बैठने के बाद देर तक घूरना मीन्स बिपिन बाबू को उसने घूरा और कहा कि क्या तुमने ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रखी है? एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे याद है, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न. मीन्स जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा क्लीन रिकॉर्ड है जहाँ तक इन सब की बात आती है. मीन्स जब किसी चीज़ को याद करने की बात आए या मेमोरी की बात आए तो तुम्हें ये सब याद रहता है. आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू. एंड नाउ ही इज़ क्लेमिंग कि जो तुम मुझे इतने दिन से इग्नोर कर रहे हो, मैं उस पर भी ये बता रहा हूँ कि मुझे पता है तुम्हारे लिए पुरानी मित्रताओं का कोई अर्थ नहीं रह गया है. बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारे पास अच्छी मेमोरी है, याददाश्त तुम्हारी अच्छी है. यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप. और इसका ये कतई मतलब नहीं है कि तुम ये कहो कि तुम रांची ट्रिप के बारे में ही सब कुछ भूल गए हो. बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज incredulous stare. Do you remember what my last job was? asked चुनीलाल. सो बिपिन बाबू इन सारी बातों को सुनने के बाद उसको वो जो घूर रहा था, इनक्रेडुलस स्टेयर कर रहा था, स्टेयर मीन्स घूरना, उससे उन्होंने अपने चेहरे को फेर लिया. एंड देन द चुनीलाल आस्क्ड, क्या तुम्हें पता है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी? ही इज आस्किंग बिपिन बाबू. ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी. एंड बिपिन बाबू इज रिप्लाइंग कि हाँ तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. You remember that and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. कह रहा तुम्हें ये पता है कि मैं कहाँ काम करता था, लेकिन तुम्हें ये नहीं याद आ रहा है कि मैं ही था जिसने तुम्हारी रांची की टिकट बुक कराई थी. I went to the station to see you off. और मैं तुम्हें स्टेशन भी छोड़ने गया था. One of the fans in your compartment was not working. और तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फ़ैन, जितने फैंस लगे थे उनमें से एक फ़ैन नहीं चल रहा था. I got an electrician to fix it and even मैंने इलेक्ट्रीशियन को भी लेकर आया था कि उस फैन को सही किया जा सके. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? वट एवर इज़ द मैटर विद यू? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो.
अब वो वही पूछ रहे हैं कि इतना कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था और तुम्हें कुछ भी नहीं याद है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा दिमागिया हालत, मेंटल स्टेट तुम्हारा सही नहीं है। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। साई मीन्स सांस लेना, एक जोर की सांस लेना, और उन्होंने अपने सर को, शुक मीन्स पकड़ा। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। ही सेइंग कि मैं बहुत ही कठिनाई, बहुत ही हार्ड मीन्स बहुत ही मन लगा के या बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, हो सकता है यही कारण हो। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। उन्होंने अपने आप को अश्योर किया कि शायद मुझे किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning about a job. And when Chunilal saw कि बिपिन बाबू की मेंटल स्टेट इस तरह की है तो वो बिना अपनी जॉब की बात किए वहाँ से चले गए। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. And where did he go? परेश चंदा जो कि एक यंग फिजिशियन थे जिनके ब्राइट आइज और शार्प नोज थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। और जब उन्होंने बिपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में सुना तो वो काफ़ी वरीड हो गए और काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल मीन्स विचार में पड़ गए जब उन्होंने बिपिन बाबू की प्रॉब्लम्स को सुना। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। I can't tell you how it's affecting my work. No, Bipin Babu is very sad about this, and he is just begging to the doctor to cure him from this illness, क्योंकि उससे उनके वर्किंग पे भी इफेक्ट काफ़ी पड़ रहा है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आई गेस दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। डॉक्टर चंदा shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. Now doctor is saying कि मैंने आज तक आपके जैसे हालत वाले केस नहीं देखे। Frankly, this is quite outside my field of experience. और ये मेरे एक्सपीरियंस से काफ़ी बाहर की बात है जिस तरह का केस आपका है। But I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. इट कैन डू नो हार्म। कह रहे हैं कि मेरे पास फिर भी एक सजेशन है, मुझे नहीं पता इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा या नहीं, लेकिन ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, इससे कोई नुकसान भी नहीं है। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एनेक्जियसली मीन्स बहुत ही चिंता में उन्होंने अपने आप को आगे की तरफ, अपने सर को आगे की तरफ बढ़ाया उस सजेशन को सुनने के लिए। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक you are one of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason the entire episode has slipped out of your mind. Now doctor is also saying कि जहाँ तक मैंने आपकी प्रॉब्लम को सुना तो मुझे भी लगता है कि आप रांची गए होंगे, लेकिन कुछ अननोन रीज़न की वजह से वो पूरा का पूरा इंसिडेंट आपके दिमाग से हट गया है। What I suggest that you go to Ranchi once again. अब उनका सजेशन क्या है कि आप एक बार रांची फिर से जाइए। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। हो सकता है जब आप वहाँ की चीज़ों को दोबारा देखें तो आपको सब कुछ याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। और ये इम्पॉसिबल चीज़ भी नहीं है और इससे ज़्यादा अभी आपके लिए कुछ किया भी नहीं जा सकता है इस मोमेंट पर। I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. So what medicines he is giving? Nerve tonic means नसों को थोड़ा सा बांध के रखने वाला, means उनको परेशान ना होना, and tranquilizer means a medicine to reduce stress and anxiety. स्ट्रेस और एनजाइटी को, चिंता को कम करने वाली मेडिसिन उन्होंने दी। और क्या उन्होंने सजेस्ट किया? स्लीप इज़ इसेंशियल, ऑल द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। नींद लेना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो लक्षण हैं ये और भी बढ़ते चले जाएंगे कि आप चीज़ों को भूलने लगेंगे। बिपिन बाबू फेल्ट सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह उनको काफ़ी बेहतर फील हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गिव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. So in the next morning he was feeling well and he gave some instruction to his office और उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट करा ली फाइनली रांची विजिट करने के लिए। सो इफ़ यू सी हियर इन दिस चैप्टर व्हाट हैज़ एक्चुअली बीन डिस्कस्ड कि बिपिन बाबू वाज वर्किंग वेरी हार्ड
है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मन लगा के काम कर रहे थे और उनके स्ट्रेस की वजह से ये इंसिडेंट पूरा का पूरा मिस आउट हो गया था। और अब जब ये एक बार फिर से रांची घूम के आएंगे, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उनको सब कुछ याद आ जाए। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्थ चैप्टर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। Still, if you have any doubt, feel free to ask me. Thank you. Have a good day.